children, how are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is the Southern Plateaus. A plateau is a highland which is almost flat at the top. It may have one or more sides with slopes. The height of the plateau often varies from place to place. In our country, to the south of the northern plain lies the vast peninsular or the southern plateau. तो बच्चों, प्लेटो क्या होता है? प्लेटो एक हाईलैंड होता है जो कि टॉप से फ्लैट होता है. उसकी कुछ साइड्स भी हो सकती हैं और स्लोप भी हो सकता है. लोकेशन: द पेनिनसुलर प्लेटो covering nearly half of the area of India is triangular in shape with a broad base in the north and a narrow apex in the south. The peninsular plateau is made up of ancient igneous and metamorphic rocks. It is the oldest part of the Indian subcontinent. तो बच्चों, अगर हम लोकेशन की बात करें तो जो पेनिनसुलर प्लेटो है वो इंडिया का ऑलमोस्ट हाफ एरिया कवर करता है और पेनिनसुलर प्लेटो एंशियंट इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना हुआ है. दिस प्लेटो इज डिवाइडेड by the Narmada river into the following parts: the Central Highland and the Deccan Plateau. The boundary between these two units is formed by the Vindhya range. तो बच्चों, प्लेटो को फर्दर डिवाइड किया हुआ है सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटो में. मैप ऑफ द सर्दर्न प्लेटोज: अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको सर्दर्न प्लेटो का स्ट्रक्चर दिखेगा. द सेंट्रल हाईलैंड्स: द मालवा प्लेटो lies between the Aravalli Hills and the Vindhya Hills. It has black soil which is very good for growing cotton and oil seeds. Wheat and jowar are also grown here. Panna in Madhya Pradesh has diamond mines. The Chota Nagpur Plateau is rich in minerals like coal, iron, mica and manganese. The northeastern part of the region has the largest coal deposits in the country. Important coal mines are present in Girid, Bihar, Jharia and Bokaro, Jharkhand and Raniganj, West Bengal. तो बच्चों, अगर हम सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें तो मालवा प्लेटो अरावरी हिल्स एंड विंध्या हिल्स के बीच में आता है. यहाँ का सॉइल ब्लैक कलर का होता है और वो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बहुत ही फर्टाइल होता है, जैसे कि कॉटन एंड ऑयल सीड्स. जो छोटा नागपुर प्लेटो है वो बहुत ही रिच है मिनरल्स में, जैसे कि कोल, आयरन या माइका. मैनी पार्ट्स ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटो आर कवर्ड विद फॉरेस्ट्स. दे गिव अस डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. तो बच्चों, जो छोटा नागपुर प्लेटो है वो ज़्यादातर फॉरेस्ट से कवर्ड है, जिससे हमें बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं. द डेक्कन प्लेटो: द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो एक्सटेंडिंग टू साउथ टू द विंध्याज इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेटो. द हाइएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर रीजन, अनाईमुड़ी, 2695 meters above the sea level, is situated in the state of Kerala. The Ghats meet each other at the Nilgiri Hills. Tapi river flows in the south of Satpura range. Like Narmada, this river also flows into the Arabian Sea. Both Narmada and Tapi do not form any delta. The other major rivers of the Deccan Plateau, including the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri, flow into the Bay of Bengal. All these rivers make their deltas near the coast. The Godavari is the longest among the rivers of the Deccan Plateau. तो बच्चों, पेनिनसुलर प्लेटो का जो पार्ट एक्सटेंड होके साउथ डायरेक्शन में टूवर्ड्स विंध्यास जाता है उसे हम डेक्कन प्लेटो बोलते हैं. यहाँ की हाईएस्ट पीक केरला में सिचुएटेड है और डेक्कन प्लेटो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स से सराउंडेड है. यहाँ के मेजर रिवर्स हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी. यहाँ का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी रिवर. लाइफ ऑफ द पीपल: द लाइफस्टाइल and culture of the people in the plateau region
is very interesting and unique. This can be seen by the clothing they wear, the food they eat, the housing and the celebrations they have. They are simply outstanding. The states of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu are major states of this region. तो अगर हम यहाँ के लाइफस्टाइल एंड लोगों की बात करें तो वो सिंपली अमेजिंग है. यहाँ के लोग अलग ही कपड़े पहनते हैं और अलग ही तरह का खाना खाते हैं. इस रीजन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे स्टेट्स इंक्लूड करे जा सकते हैं. मध्य प्रदेश, इट इज़ अ सेंट्रली लोकेटेड स्टेट ऑफ इंडिया. भोपाल इज़ द कैपिटल सिटी. अदर बिग सिटीज़ इंक्लूड ग्वालियर, Indore and Jabalpur. The Chandela dynasty temples of Khajuraho are world famous. Panna has diamond mines. Pachmari is a beautiful hill station. The Kanha National Park and the Bandhavgarh National Park are tiger reserves. Wheat and cotton are the main crops. कान्हा नेशनल पार्क. तो बच्चों अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वो सेंट्रली लोकेटेड स्टेट ऑफ इंडिया है. भोपाल इसका कैपिटल है. यहाँ की कुछ सिटीज़ हैं ग्वालियर, इंदौर एंड जबलपुर. यहाँ पे पन्ना जो कि डायमंड माइंस है हमें मिल सकते हैं. पचमारी एक वहाँ का बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है. छत्तीसगढ़, द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट इज़ रायपुर. द लैंड, पर्टिकुलरली द महानदी बेसिन, इज़ वेरी फर्टाइल. द स्टेट is very rich in minerals such as coal, iron ore, aluminium ore and diamonds. Bhilai has India's biggest steel plants. भिलाई स्टील प्लांट. बच्चों अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ का कैपिटल रायपुर है. यहाँ का लैंड बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है एंड रिच इन मिनरल्स सच एज कोल एंड एल्यूमिनियम. झारखंड, झारखंड is also very rich in minerals and forest resources. Many big industries are located here as plenty of resources like iron, coal and manganese are found here. Ranchi is the capital city. Other big cities are Jamshedpur, Bokaro and Dhanbad. Damodar and Subarnarekha are the famous rivers. The state possesses plenty of minerals in the form of coal, iron and manganese. All minerals are mined here. तो बच्चों अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ का कैपिटल रांची है. यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हमें ईजिली मिल सकते हैं. यहाँ का लैंड भी रिच इन मिनरल्स होता है. यहाँ पे सिटीज़ लाइक जमशेदपुर एंड बोकारो एंड धनबाद फेमस है और यहाँ पे हमें बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं कोल, आयरन एंड मैंगनीज के. ओडिशा, ओडिशा इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला. भुवनेश्वर इज द कैपिटल सिटी. कुट्टक इज द मेन इंडस्ट्रियल सिटी. पुरी हैज़ मेनी टेम्पल्स. द एनुअल रथ यात्रा ऑफ पुरी इज वेरी फेमस. एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ इकोनॉमी. Rice and jute are the main crops. Paradip is the only port belonging to Odisha. Odisha is famous for its textile and silver work. Odissi is the popular classical dance of Odisha. रथ यात्रा ऑफ पुरी. तो बच्चों अगर हम ओडिशा की बात करें तो वो इंडियन पेनिनसुला के नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर लोकेटेड है. कटक यहाँ का मेन इंडस्ट्रियल सिटी है. पुरी में बहुत सारे टेम्पल्स हैं और यहाँ की मेन है रथ यात्रा. एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि वो वहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इकोनॉमी का. महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज़ अ प्लेटो. इट्स वेस्टर्न upturned rims rising to form the Sadari range parallel to sea coast and its slopes gently descending towards the east and southeast. Rivers Godavari and Krishna flow through the state. Mumbai
is the capital city of Maharashtra. Maharashtra has black soil suitable for growing cotton. Jowar, bajra, groundnut and sugarcane are also grown here. There are many orchards of orange, bananas, mangoes and grapes. तो बच्चों, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ की कैपिटल सिटी मुंबई है. यहाँ पे गोदावरी एंड कृष्णा जैसे रिवर फ्लो करते हैं. महाराष्ट्र का ब्लैक सॉइल कॉटन ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा है. यहाँ पे आपको जोवर, बाजरा एंड शुगर केन के क्रॉप्स भी दिखाई देंगे. Men mostly wear a shirt and dhoti while women wear sarees. People speak Maratha. Ganesh Chaturthi, Navratri, Diwali and Christmas are the main festivals celebrated here. Lavani is the folk dance. Important tourist centers of Maharashtra are Ajanta, Ellora, Elephanta, Kanheri and Karla caves. Mahabaleshwar, माथेरन एंड पंचगनी, अजंता एलोरा केव्स. तो बच्चों, अगर हम कपड़ों की बात करें तो यहाँ के मेन शर्ट एंड धोती पहनते हैं एंड वुमेन साड़ी पहनती हैं. यहाँ के लोग मराठा में बात करते हैं. गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली एंड क्रिसमस यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. यहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट सेंटर्स भी हैं जैसे कि अजंता, एलोरा and Karla caves. Karnataka. The state of Karnataka lies to the south of Maharashtra. Bengaluru, erstwhile Bangalore, is the capital of the state. Karnataka has been in the forefront of information technology. Other big cities are Mysore, Hubli, Bijapur and Dharwad. Rivers Krishna, Tungabhadra एंड कावेरी फ्लो थ्रू द स्टेट. तो बच्चों, अगर हम कर्नाटका की बात करें तो वो महाराष्ट्र के साउथ में लाया करता है. इसका कैपिटल बेंगलुरु है. यहाँ पे आपको बहुत सी सिटीज़ देखने को मिलेंगी जैसे कि मैसूर एंड बीजापुर. यहाँ के रिवर्स हैं कृष्णा एंड कावेरी. मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट आर फार्मर्स. दे ग्रो कॉटन, शुगर केन, कॉफ़ी, spices and jowar. The forests are full of teak and sandalwood trees. The people of the state speak Kannada. Men usually wear a lungi and shirt while women wear colorful silk sarees. Handicraft items made of sandalwood are very famous. The state is known for its heritage monuments एंड इको टूरिज्म डेस्टिनेशंस. तो बच्चों, यहाँ के मोस्टली लोग फार्मर्स हैं. वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं जैसे कि कॉटन एंड शुगर केन. यहाँ के लोग कन्नड़ा में बात करते हैं. आदमी लुंगी पहनते हैं एंड औरतें साड़ी पहनती हैं. ये स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत फेमस है और अपने हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के लिए भी. आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश इज़ बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय ओडिशा and Chhattisgarh, on the west by Maharashtra and Karnataka, on the south by Tamil Nadu and on the east by the Bay of Bengal. Hyderabad is the capital city. The people mainly depend on agriculture. They grow rice, jowar, tobacco, sugarcane and groundnut. This state is the largest producer of tobacco in India. तो बच्चों, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ की कैपिटल सिटी हैदराबाद है. यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है. यहाँ पे राइस, जोवर, टोबैको, शुगर केन एंड ग्राउंडनट को ग्रो किया जाता है. अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको है. द चारमीनार एंड सलरजंग म्यूजियम आर पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस. द वेंकटेश्वरा टेम्पल at Tirupati is a pilgrimage center. People mostly speak Telugu. Urdu is also spoken in Hyderabad. कुचिपुड़ी is the most popular dance. तो बच्चों, अगर हम बात करें तो यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं. वहाँ का
वेंकटेश्वर टेम्पल एक बहुत ही बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर है। यहाँ के लोग ज़्यादातर तेलुगु में बात करते हैं, पर हैदराबाद के कुछ लोग उर्दू में भी बात करते हैं। कुचिपुड़ी वहाँ का फेमस डांस है। तमिलनाडु, द southernmost state of India, Tamil Nadu is bounded on the north by Andhra Pradesh and Karnataka, on west by Kerala, on east by the Bay of Bengal, and on south by the Indian Ocean. It is famous for temples. The main temple towns are Madurai, Thanjavur, Tiruchirappalli, and Kanchipuram. Chennai, the capital city, also has many temples. Tamil Nadu is also famous for its silk sarees. Kanchipuram and Madurai are the main centers of silk weaving. तो बच्चों, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वो अपने टेम्पल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मदुरई और थंजावुर जैसी सिटीज़ टेम्पल्स के लिए बहुत फेमस हैं। चेन्नई वहाँ का कैपिटल है। यहाँ के लोग अपनी सिल्क साड़ीज़ के लिए बहुत फेमस हैं। कांचीपुरम एंड मदुरई सिल्क वीविंग के मेन सेंटर्स हैं। फार्मिंग इज़ द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी. राइस, शुगर केन, कॉटन एंड ग्राउंडनट are the main crops. Tea and coffee are grown along the slopes of the Nilgiri hills. तो बच्चों, यहाँ की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी फार्मिंग है। राइस, शुगर केन, कॉटन एंड ग्राउंडनट यहाँ के मेन क्रॉप्स हैं। यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी भी ग्रो करी जाती है। मेजर टूरिस्ट सेंटर्स आर मम्मलपुरम, कांचीपुरम, रामेश्वरम, चिदम्बरम and many other places. Bharatnatyam is the most popular dance. Tamil is the main language. Pongal is the most popular festival. People eat rice, idli, dosa, उपमा, सांभर and curd. तो बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट सेंटर्स हैं। यहाँ के लोग भरतनाट्यम डांस फॉर्म में डांस करते हैं। यहाँ की लैंग्वेज तमिल है। पोंगल यहाँ का मेन फेस्टिवल है। और खाने की बात करें तो राइस, इडली, सांबर एंड उपमा मेनली यहाँ के लोग खाते हैं। थिंक एंड आंसर। बच्चों, इन क्वेश्चन का आंसर आप खुद से करेंगे। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।